السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وقال الله تبارك وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ من كتاب الله حرف فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان فاهتم بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں دینی بھائیوں، اس وقت قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی 3 آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 3 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، جس میں 1457 سال پہلے قرآن کے ساتھ جو چیلنج تھا وہ چیلنج آج بھی باقی ہے، اور 1457 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر مکہ کے مشرکین نے قرآن کریم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آج سویڈان میں قرآن کریم کا نسخہ جلا کر کے جو انتہائی خطرناک گھناؤنی اور ناپاک حرکت اللہ کی کتاب کے ساتھ کی ہے، جو ہمارے کانوں میں خبر پہنچی ہے، بس اسی کے متعلق میں نے قرآن کریم کی یہ آیات آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے. قرآن دشمنی، نبی کی دشمنی، دعوت و ارشاد کے ساتھ دشمنی، اہل حق کے ساتھ دشمنی، یہ کفار کا سیوا ہے، یہ باغیوں کی عادت ہے، یہ دشمنان اسلام کا سب سے دلچسپ مشغلہ رہا ہے. لہذا ہمیں باطل کے چیلنج اور اس کی وجوہات پر غور کر کے اس کی علاج کی طرف کوشش کرنی چاہیے.
आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनी उम्र शरीफ के 41वें बरस में ऐलान नबूवत जब मक्का मुकर्रमा में फरमाया, गारे हिरा की खलवतों का निसाब पूरा हुआ, आप पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ और इब्तिदाई 4 आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जब आका इन इब्तिदाई 4 आयात को लेकर के घर तशरीफ लाए हैं, ये वही की इब्तिदाई कैफियत थी जो नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश हुई थी। और आपने ये कुरान मक्का वालों को पेश किया। खदीजा की किस्मत में ईमान था, हजरत नूह की बीवी की किस्मत में ईमान नहीं था, लूत की बीवी की किस्मत में ईमान नहीं था। कुरान ने दोनों को खाइन करार दिया। हजरत नूह और लूत की बीवी खाइन करार दी गई। कुर्बान जाए ईमान और अमानतदारी खदीजा में सबसे गालिब थी। कुरान की बरकत से पैगंबर की दावत की बुनियाद पर सबसे पहली उम्मत में ईमान लाने वाली खदीजतुल कुबरा, अबू बकर सिद्दीक, अली इब्न अबी तालिब, उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा, ये सब अव्वलीन मुसलमान हुए। उस जमाने में आपने कुरान पेश किया मक्का वालों को। मक्का वालों ने जो चैलेंज उस वक्त कुरान के साथ था, आज 1457 साल के बाद कुरान करीम की यह आयत की तिलावत करनी पड़ी। फ़क़ाल लल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीह लअल्लकुम तग़लिबून। एक बात बहुत वाज़ेह है, हक़ जितना दबाया जाता है इतना उभरता है, हक़ जितना कमजोर करने की कोशिश की जाती है इतना ताकतवर बनता है। हर जमाने में हक़ और बातिल का बाहम मुकाबला रहा है। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हर जमाने में हक़ भी है और बातिल भी है, तकाबुल बराबर चलता है और गलबा अंजाम के एतबार से हक़ का है और बातिल वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बातिल न करने का रहता है, बातिल न धरने का रहता है, हक़ गालिब है। इन्नल्लाह, अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाया है कि अल्लाह हक़ को गालिब करके रहता है और बातिल को खत्म कर देता है। आका ने कुरान पेश किया, मक्का वालों ने चैलेंज किया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से घड़ करके कुरान पेश कर सकता है तो हम भी पेश कर सकते हैं। जो कुरान ने चैलेंज किया, लाओ तुम इसके मानिंद कुरान बनाकर, लाओ तुम इसके मानिंद 10 सूरतें बनाकर, फातू बिअशरी सुवरिन मिस्लिहा, 10 सूरतें बनाकर ले आओ। अरे एक आयत बना करके ले आओ। लेकिन आज तक कुरान जैसा कलाम कोई बना करके नहीं ला सका, इसलिए कि ये घड़ा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि रब ताला की तरफ से उतरा हुआ अल्लाह का कुरान है। अल कुरान किताबुल्लाह दय्यार अलैहि मदारुल हिदायत वल ईमान। ईमान और हिदायत का मदार कुरान पर है। दूसरा चैलेंज, मक्का वालों ने कहा अलियाज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर है, अल्लाह की किताब नहीं है, ये तो शायर शायरी है। मक्का वालों ने कहा कुरान कहानत पैगंबर काहिन है अलियाज़ु बिल्लाह, और कहानत का पेशा इख्तियार करता है, इसीलिए ये कहानत का कलाम है। तीसरा इल्जाम कुरान पर यह था, ये तो अलियाज़ु बिल्लाह वो जादूगर है
اور اس کے کلام کے اندر جادو کی تاثیر ہے. 3 الزام قرآن پر تھے. یہ کہانت ہے، یہ شعر شاعری کی کتاب ہے، یہ جادو ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ کئی آیتوں کے اندر اس کا ازالہ فرمایا. آپ نہ تو شاعر ہیں، آپ نہ تو ساحر ہیں، آپ نہ تو کاہن ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. 13 سال مسلسل مکے کی سرزمین پر ان چیلنجوں کا قرآن جواب دیتا رہا اور نبی ان کو سمجھاتے رہے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں دار الندوہ میں، دار الندوہ کیا ہے؟ مکہ کے مشرکوں کی ایک خاص میٹنگ ہال تھا حرم میں، جہاں بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کے خلاف، نئے دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف پلاننگ رچی جاتی تھی. اللہ کتنا حلیم ہے، اپنے گھر میں اپنے بندوں کے بابت، اپنے دوستوں کے بابت، اپنی کتاب کے بابت، اپنے خاص بندوں کے بابت بری سازش خدا کے گھر میں بنانے والوں کو بھی خدا مہلت دیتا ہے. ایک میٹنگ ہال تھا جس کا نام دار الندوہ تھا. ندوتن کا معنی مجلس، دار کا معنی گھر، اس کو میٹنگ ہال کہتے ہیں، یعنی میٹنگ کا ایک گھر بنایا تھا. مکہ کے مشرک آقا کو تکلیف دیتے دیتے تنگ آ گئے، صحابہ کو پریشان کرتے کرتے تنگ آ گئے. بلال، عمار، صہیب، سلمان، حضرت زنجیرہ، حضرت سمیہ وغیرہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ مار کھاتے کھاتے نہیں تھکے، مارتے مارتے لوگ تھک گئے. ان کو آگ کے تنور میں ڈالا گیا، ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا اور ان کے ساتھ زمین پر گھسیٹ کر کے دور تک لے جایا گیا. لیکن ایک بھی استقامت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کی رگ و پے میں پیوست ہو چکا تھا، دنیا کی کوئی طاقت ان سے ہٹا نہیں سکی. یہ لوگ ایک دن مکے میں جمع ہوئی، حرم میں، دار الندوہ میں. حاصل میٹنگ کا کیا تھا؟ جتنا مارتے ہیں اتنا ابھرتے ہیں، جتنا دباتے ہیں اتنا اوپر آتا ہے. ان سے محبت کرنے کے والوں کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی، گھٹنی چاہیے. مار کھانے کے بعد تعداد گھٹ جائے، ان کو پریشان کرنے کے بعد ان کی حمایت کرنے والے کم ہو جائے. لیکن پریشانی یہ تھی کہ یہ تو محبین کی تعداد بڑھتی ہے، ان کا دین مغلوب ہونا چاہیے، غالب آتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے پریشانی کو سوچ رہے تھے کہ ہمارا مطلب حل کیوں نہیں ہوتا. فوج ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، چودراہٹ ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس. ایک یتیم ہے، ایک بے آسرا ہے اور پورے عرب کو اپنی مٹھی میں لینے کی بات کر رہا ہے. پراگندہ پروانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی مقبولیت روز بڑھ رہی ہے. آخر ہے کیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی. بس یہ پریشانی اور یہ فکر دامنگیر تھی مکہ کے مشرکوں کو. مجلس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، عاص ابن وائل بھی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی تھا. یہ صنادید قریش تھے، یہ اڈی کھم رہنے والے انسان تھے، یہ اپنی جگہ ہمت کے پہاڑ تھے. ان کی چودراہٹ بہت مسلم تھی، ان کی نیتا گیری پر حرف نہیں آ سکا تھا. لیکن فکر دامنگیر تھی. سیٹ کا سوال تھا، اقتدار کا سوال تھا. آخر ایک در یتیم، آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر، اس قدر پراگندہ پروانی ان پر مشتاق کیوں ہے؟ عتبہ سب سے چرب اللسان انسان تھا اور عرب میں افصح اللسان تھا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. اس کی زبان
بہت میٹھی تھی اور اس کی زبان ادبی فصاحت کی مال افصح العرب، عرب میں سب سے فصیح ترین زبان، اور عرب میں چرب اللسان انسان تھا وہ۔ ان صنادید قریش کی پریشانی کو دیکھی، دارالندوا میں اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، ابھی صبح ہوئی ہے، شام سے پہلے نتیجہ تمہارے پاس لا کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ اس نے چیلنج کیا، ابھی صبح کو مشورہ ہو رہا ہے، شام سے پہلے نتیجہ آ جائے گا۔ سب صنادید قریش خوش ہو گئے کہ جن کو ذمہ داری سنبھالنی تھی اور جن کے ذمے یہ کام عائد تھا انہوں نے خود قبول کر لیا، سب خوش ہو گئے۔ آج شام سے پہلے محمد کا سورج غروب ہو جائے گا اور صنادید قریش کا ڈنکا بج جائے گا۔ خوشی تھی اس لیے کہ ان سے فصیح لسان کوئی انسان نہیں تھا، ان سے چرب اللسان کوئی انسان نہیں تھا۔ جس کی زبان اچھے اچھوں کو پانی کر دے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چرب اللسانی سے بچ سکتے ہیں؟ ان کے داؤ پیچ سے باہر رہ سکتے ہیں؟ خوش ہو گئے۔ یہ گیا آقا کی خدمت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بڑے خیرخواہ ہیں، آپ ہماری قوم کے آدمی ہیں، آپ نے نئے دین کی دعوت شروع کی، میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ہو گئی، اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جدائی ہو گئی، ہر چھوٹے بڑے کے درمیان میں دشمناوٹ پیدا ہو گئی، آپ آبائی دین پر واپس آ جائیں اور نئے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ اس کی بات کا انداز دیکھو، آپ کی باتوں سے میاں بیوی میں جدائی، ماں باپ اولاد میں تفرقہ، بڑے چھوٹوں کے درمیان میں لڑائی، آبائی دین کو برقرار رہنے دو اور نئے دین کی دعوت کا سلسلہ ختم کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں ہم 3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک، اگر آپ پورے حجاز اور پورے عرب کے والی بننا چاہیں تو ہم عام کو سلطنت سپرد کر دیتے ہیں، آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اگر آپ ریاست چاہتے ہیں، اگر آپ امارت چاہتے ہیں، اگر آپ چودراہٹ چاہتے ہیں، آپ کے نام پر عرب لکھ دیتے ہیں، آپ حاکم بن جائیں۔ اگر نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کسی شریف خاندان میں آپ کی شادی ہو جائے تو ہم بہترین بیٹی نکال کر آپ کا نکاح کرا دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں پورے عالم کی دولت آپ کے قدموں میں جمع ہو جائے، پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ 3 باتیں اس نے کی۔ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں، عرب لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ شادی چاہتے ہیں، کسی بھی سردار کی بیٹی سے پیغام آپ کے لیے قبول۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں جمع کر دیں، تیار ہے۔ آقا خاموشی سے سن رہے ہیں، پہلے اس کو بات کرنے کا موقع ملا ہے، آقا نے اس کی بات کو تفصیل سے سنا۔ پھر آقا نے فرمایا اب کچھ اس کے بعد کچھ کہنا ہے؟ تمہاری تقریر پوری ہو گئی، پوری بات سنی آقا نے، اب کچھ کہا نہیں۔ اب آقا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم۔ حامیم کی ابتدائی آیات آقا نے پڑھی، جیسے ہی قرآن پڑھنا تھا سورہ حامیم کی ابتدائی آیات، اس کے دل پر بجلیاں گری۔ معاند تھا، ضدی تھا، کافر تھا، پورے عرب کا چرب اللسان انسان تھا، پورے عرب کا افصح اللسان انسان تھا۔ اپنا ورچسو اپنے ہم مشربوں میں جمانے کے لیے، آقا کو زہر کرنے کے لیے دشمن بن کر کے آیا تھا، لیکن قرآن وہ انقلابی تاثیر کی کتاب ہے جس نے وہ انقلاب پیدا کیے
کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اکڑی ہوئی چھاتی جھک گئی، اس کا اکڑا ہوا سر نیچا ہو گیا اور دو زانو دیکھ کر قاعدے میں اللہ کے پیغمبر کی تلاوت سننے میں مصروف ہو گیا۔ جب تلاوت پوری ہوئی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک دشمن ہو، ایک اکڑ میں ہو، ایک عناد میں ہو اور پوری قوم کی طرف سے آرزو کا ایک زندہ خواب جن سے دیکھنا چاہتے ہو اور ایک تاثیر اس کے کلام کی مشہور ہو، خالی ایک سورت کی ابتدائی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب صادر ہوئی تلاوت، وہ زیر ہو گئے۔ یہاں سے واپس ہوا، مکہ کے مشرک صنادید قریش سب خوش تھے کہ آج تو فیصلہ کن جواب لے کر کے ہمارا سردار آ رہا ہے، لیکن چہرے مہرے سے ابو لہب نے، ابو جہل نے، شیبہ نے، ولید ابن مغیرہ نے، عاص ابن وائل نے سمجھ لیا کہ یہ وہ چہرہ عتبہ کا نہیں ہے جو محمد کی صحبت سے جانے سے پہلے تھا، اور محمد کی صحبت میں چند گھنٹے رہ کر کے عتبہ کا چہرہ جو بدل گیا ہے، یہ وہ چہرہ قسم خدا تعالیٰ کی نہیں ہے جو ان کی صحبت میں جانے سے پہلے تھا۔ چہرہ چگل خور ہوتا ہے، آدمی کے اندر کو سمجھا دیتا ہے، وہ سمجھ تو گئے تھے چہرے سے، لیکن ان کے جواب کا انتظار تھا۔ سب جمع ہو گئے، کیا جواب لے کر آئے؟ کہا دیکھو اے صنادید قریش، اے میرے ہم مشرب ساتھیوں، میں نے محمد کی زبان سے وہ کلام صادر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قسم خدا تعالیٰ کی وہ شاعری کی کتاب نہیں، وہ ساحرانہ کلام نہیں، وہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، وہ تو محمد کے پروردگار کا اترا ہوا، محمد کے قلب اطہر پر اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی اونچی بات کہی، سارے مکہ والوں کے باطل عقائد تردید ہو گئی۔ یہ کاہنوں کا کلام نہیں، یہ شاعروں کا کلام نہیں، یہ شعر شاعری کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور وہ دلوں پر اثر کر کے رہتا ہے۔ یاد رکھو، محمد کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو ہمارا ہی ایک فرد ہم پر حکومت کر کے غالب آئے گا جو ہماری عزت بڑھے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ مغلوب ہوا تو ہمارے ہاتھ ان کو ہرانے سے باز رہیں گے، اس میں ہمارے لیے کوئی ہلاکت نہیں ہوگی، ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دو۔ اتنے بڑے انسان کو قرآن نے زیر کیا۔ طفیل ابن عمرو الدوسی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمت، اولو العزمی، استقلال اور ہمت کے پہاڑ تھے، بڑے طاقتور جواں مرد فعال تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کی درستگی، اصابت رائے کے مالک تھے، حمیت اسلامی زبردست عمر میں تھی، حق کے مقابلے میں باطل کے انتہائی خطرناک دشمن تھے۔ اسلام سے پہلے کے حالات عجیب، اور اسلام لانے کا سبب وہی حضرت عمار کی قرآن کی تلاوت ہوئی تھی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی ایک مشہور شاعر تھا، ایک بہت بڑا ادیب تھا۔ جب مکہ میں آیا، مکہ والوں نے بھاری استقبال کیا، اور طفیل ابن عمرو الدوسی سے کہا، یہ مکہ اور اس کی وادی آپ کے لیے قربان ہے، آپ شعر و ادب کے امام ہیں، ہم آپ سے گفتگو نہیں کر سکتے، البتہ اتنا کہتے ہیں، یہاں ایک شابی، یہاں ایک بددین الیاذ باللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب پیدا ہوا ہے، اس کا کلام مت سننا۔ وہ اپنے کان میں روئی بھر دیتا تھا، لیکن قسمت جاگ گئی طفیل کی، آقا حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، اور طفیل ابن عمرو الدوسی کے کانوں میں جب قرآن پڑھا تو طفیل کو زیر کر کے رکھ دیا۔ جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن الخیار، بہت بڑا انسان، جب وہ مکے میں آیا، سورہ والطور کی ابتدائی آیت ان کے اسلام کا سبب بن گئی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت حضرت عمر کے اسلام کا سبب بن گئی۔
क्या मतलब? चैलेंज कुरान के साथ कहानत का, चैलेंज कुरान के साथ सेहर का, चैलेंज कुरान के साथ शायरी का, चैलेंज कुरान के साथ मोहम्मद के घड़े हुए कलाम का। 1000 आयतें अल्लाह ने कुरान में इस बात कुरान के बाबत उतारी है। 1000 आयत पूरी कुरान में 1000 आयतें हैं जिसमें इस बात कुरान हुआ। कुरान अल्लाह की किताब, कुरान कल्ब अतहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में हिफाजत हुई है। कुरान कल्ब अतहर रसूल से आका के दिलों में मुंतकिल हुई है। कुरान सहाबा के कुलूब से उम्मत में आया है और रहती दुनिया तक कुरान जमीन पर बाकी रहेगा। उसके काले हुर्फों के बका के साथ आसमान और जमीन का बका है और इनके काले हुरूफ के उठाए जाने के साथ आसमान और जमीन का निजाम दरहम बरहम होने का है। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान। मक्का के काफिर कहते थे कुरान मत सुनो। कुरान ने साफ साफ हिकायत बयान की। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, काफिरों ने कहा ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, कुरान मत सुनो। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीह, और अगर कुरान पढ़ा जाता तो वो सीटियां बजाते थे, शोर करते थे, तालियां पीटते थे, चिल्लाते थे, शोर करते थे। वल्गौ फीह लअल्लकुम तग़लिबून, पहले तो लोगों को मना करते थे कुरान सुनो मत, ला तस्माऊ, पहले बात सुनी जाती है फिर इताअत की जाती है। साहबा की सिफत थी समिअना व अताअना व ग़फ़रनक रब्बना व इलैकल मसीर। हम बात को सुनेंगे, हम बात को सुनकर समझेंगे और समझकर अमल का जामा पहनाएंगे और अमल का जामा पहनाने के नतीजे में अल्लाह ताला गलबा अता करेगा। यह चैलेंज था। जब कुरान पढ़ा जाता तो शोर करते थे ताकि कोई कुरान सुनने न पाए। लअल्लकुम तग़लिबून, और कहते थे कुरान मत सुनो और कुरानी हल्के जहां हो और पढ़े जाते हो इसको बंद करने की कोशिश करो। 1457 साल पहले कुरान के हल्के बंद करने की कोशिश मक्का के काफिरों ने की। आज कायनात में कुरान का नुस्खा स्वीडन में जलाकर और कुरान करीम के मकातिब और कुरान करीम के मदारिस पर पाबंदियां आईद की प्लानिंग बनाकर जब 1457 साल का इतिहास बताता है कि कुरान कोई बंद नहीं कर सका और रहती दुनिया तक कुरान की खिदमत को कोई बंद नहीं कर सकेगा। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैंने ये 1457 साल की तारीख इसलिए दोहराई ताकि ये ज़हन में बात बैठ जाए। ये अल्लाह की किताब है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। तौरात अल्लाह की किताब, ज़बूर अल्लाह की किताब, इंजील अल्लाह की किताब, अंबिया के 100 सहीफे अल्लाह के सहीफे, एक की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। यहूद ने बाइबल बदल दी, तौरात में चेंज हो गया, अंबिया के सहीफों में तहरीफ हुई। एक किताब ऐसी है जिसके लबो लहजे नहीं बदले, जिसके हुरूफ नहीं बदले, जिसकी हरकत और सकनात नहीं बदली, इससे इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम नहीं बदला और कयामत तक नहीं बदल सकता है। एक सच किताब है जिसके लबो लहजे की हिफाजत हुई। लिसाने नबुव्वत से जिस वक्त जो अदा से अल्लाह का कलाम सादिर हुआ था, लिसाने नबुव्वत से जो चीज सादिर हुई उसी हकीकत के साथ उम्मत ने इसको महफूज किया और वो कुर्राए कुरान का तबका है। मुसलमानों के बच्चों की सीनों में उसकी हिफाजत करवाकर हुफ्फाज का तबका है जो फड़फड़ इसको सुनाते हैं। सहीफे में से कोई जला सकता है लेकिन सीने में से कौन जला सकता है? हाँ हाँ, हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि सीनों में से भी निकालने की कोशिश की थी। मक्का के मुशरिकों ने सुनने से मना कर दिया, सुनो मत। और अगर मजलिसें हो
तो इसको फोक कर दो, तो तुम अपना दीन बचा सकोगे। कुरान खत्म करो, अपने दीन को बचाओ। वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, मोहम्मद को खत्म करो, अपने दीन को बचाओ, तो ही तुम अपने दीन को बचा सकते हो। और आपकी कत्ल की प्लानिंग भी हुई जो सफर के महीने में हम जिक्र करते हैं, अजीब अंदाज की। अंबिया के साथ ये सब तरतीबें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की। मक्का के मुशरिकों के ये चैलेंज थे। 1457 साल, 1444 हिजरत के हो गए, इस पर हिजरत से पहले के 13 साल मिला दो। 1457 साल पहले मक्का की वादी में मक्का के मुशरिकों की हिकायत कुरान यूं नकल करता है, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीह लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। इंतहाई खतरनाक धमकी। क्यों? किताब अल्लाह की है, हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है, और अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, और हो रही है, आज तक हो रही है। हिंदुस्तान में जिस वक्त अंग्रेज आया था और शाह अब्दुल अजीज इब्न वलीउल्लाह अल मुहद्दिस देहलवी ने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब का फतवा सादिर किया और जंग आजादी की शुरुआत हुई, और 200 साल मुसलसल जंग में बहुत जबरदस्त कुर्बानी दी गई। 2 बरस 11 महीने 18 दिन 47 के बाद 2 बरस 11 महीने 18 दिन देश का एक बंधारण बनाने में वक्त लगा। और यूं समझ लीजिए 1950 से आजाद भारत अपने दस्तूर के साथ, अपने बंधारण के साथ, अपने आईन के साथ गुलामी से जब आजाद हुआ, 200 साल इस जंगी दौर में 2 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए थे और 2,55,000 उलमा को फांसी दी गई थी। और जहां देखा मस्जिद का इमाम, जहां देखा मकतब का मुअल्लिम, जहां देखा कुरान का उस्ताद, इसको कत्ल कर दिया। मक्का के मुशरिकों ने तो इस पर इत्तिफाक किया था कि कुरान का हल्का सुनने न पाए तो अपना दीन गालिब रहेगा, लेकिन अंग्रेज ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम और इसी के साथ उलमा, अइम्मा, मकातिब के मुदर्रिसीन, कुरान के हुफ़ाज़ और कुरान के नुस्खे जलाए। लेकिन 1457 में 57 साल के बाद कुरान पर हालात आते रहे और कुरान पर चैलेंज होते रहे और कुरान के परागंदा परवाने कुरान की हिफाजत में मसरूफ होते रहे। सूडान में कुरान करीम का नुस्खा जला करके इन्होंने मुसलमानों को मुतवज्जे किया। अल्लाह फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। जरूर हम मक्का वालों को छोटे अजाब से पहले, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब चखाएंगे। अल्लाह ताला ताकीद दर ताकीद फरमाते हैं, लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला वलनुज़ीक़न्नहुम, जरूर हम सजा चखाएंगे, बड़ी सजा से पहले छोटी सजा। यहां उलमाए तफसीर ने लिखा है बड़ी सजा आखिरत में जहन्नम की, बड़ी सजा आखिरत में अल्लाह के कहर और गुस्से की, बड़ी सजा आखिरत में अल्लाह का उन पर तवज्जो न करना, इनको गर्म गर्म पानी और पीठ पिलाना और जहन्नम का जख्म खिलाना और इंतहाई खतरनाक अजाब में मुब्तला करना। यहां तक कि इस उम्मत का एक काफिर जहन्नम का एक कोना भर दे, इतनी बड़ी जसामत खुदा बनाकर उसे जलील करके जहन्नम में छोड़ देंगे। बड़ा अजाब तो ये है। अल्लाह फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब भी चखाएंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। लेकिन अल्लाह अरहमुर राहिमीन, बंदों को अजाब देकर खुश नहीं होता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम
इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अरे अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करे? तर्जमा ये होता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको सजा देकर करे क्या? यानी अल्लाह का क्या फायदा? ला इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा। अल्लाह की सजा से बचने के लिए, अल्लाह के आजाब से बचने के लिए दो काम करना है। ला इन शकरतुम व आमनतुम, कदर कर लो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, कदर कर लो कुरान की, कदर कर लो हक की। ला इन शकरतुम व आमनतुम, और अमली कदर ये है कुरान का जामा पहन लो, नबूवत की गुलामी में आ जाओ और कलमा पढ़ लो। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीम, अगर इतना कर लोगे, नेमत की कदरदानी करते हुए नेमत के हाथ में हाथ दे दोगे, तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा कदरदान है, बहुत बड़ा जानने वाला है। कुरान करीम का नुस्खा जलाया, 1457 साल हमारे कानों में पड़ा कि कुरान करीम का पूरा नुस्खा जलाया। अब मुसलमानों को ये हिदायत की गई, जरूर भी जरूर कहीं न कहीं कायनात में बसने वाले मुस्लिम कौम 2 अरब मुसलमान दुनिया में बसते हैं, यानी 200 करोड़। 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबादी अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले मुसलमान कहलाने वाली कौम अल्लाह की धरती पर पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा है। एक स्वीडन में एक कुरान का नुस्खा जलाकर उसने अपनी बदतमीजी, उसने अपनी हलाकत, उसने अपने कुफ्र पर अड़ना, उसका अल्लाह की किताब से दुश्मनी का इजहार इतने तक महदूद नहीं है। इसने 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के कुलूब पर इंतहाई कातिलाना हमला करके हमारे दिलों को दस्तक दी है। ए कुरान के हामिलीन, तुम अल्लाह की किताब से बेखबर हो गए। ये सहीफे हैं, इससे जलाया गया, अपने सीनों में उसकी हिफाजत की कोशिश करो। लिहाजा वो ललकारता है कि सहीफे में से मिटाया जा सकता है, लेकिन सीने से नहीं मिटाया जा सकता है। लिहाजा अपने सीने में उसकी हिफाजत की तदाबीर पेश करो। और कुरान कहता है, हमने कुरान को वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, याद करने के लिए बहुत आसान कर दिया है कोई याद करने वाला? बाद मर्तबा आदमी जमात में जाता है, खानका में जाता है, किसी अच्छे इंसान की सोहबत में रहता है, कुरान सीखने की कोशिश करता है। एक लंबा जमाना गुजर गया जिसमें कभी भी मुनासबत पैदा नहीं हुई, तो जल्दी मुनासबत पैदा नहीं होती। उम्र भी हो गई, जुबान भी सकीन हो गई, अब तलफ़्फ़ुज़ से हद अदा नहीं हो रही है। शैतान भी जोर लगा रहा है कि रहमान का करीब न हो जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब न हो। एक तरफ शैतान दुश्मन, एक तरफ नफ्स दुश्मन, एक तरफ उम्र का मसला, एक तरफ इंसान के आज़ार और एक तरफ दुनिया की मोहब्बत। इसीलिए बचपने का जमाना कुरान की तालीम के लिए है। बच्चे का दिल आईने की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है, जो लिखो उस पर साबित हो जाता है। लेकिन बड़ी उम्र में भी कुरान सीखा जाता है, इसको याद किया जाता है, इसको हिफ्ज किया जाता है। जिस दिल में कुरान की एक आयत होगी, उस दिल को कसम खुदा ताला की जहन्नम की आग कभी जला नहीं सकती। क्या ख्याल है हमारा आपका, जिसके सीने में 6665 कुरान की आयतें हो, उस दिल को क्या जहन्नम की आग कभी जला सकती है? कभी भी कुरान को, जिसके सीने में कुरान है, इसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती। चैलेंज तकरीबन 1457 साल से आज तक जारी है। कभी शायर कहते थे, कभी साहिर कहते थे, कभी काहिन कहते थे, कभी घड़ा हुआ कलाम कहते थे। उस वक्त कुरान उतर रहा था, और कुरान उतरते हुए उस जमाने में अल्लाह ने इन चैलेंजों के जवाब दिए। अब रहती दुनिया तक कुरान करीम की 1000 आयत, जमाने का हर वो बातिल, कुरान के मुकाबले का हर वो मुआनिद जिद्दी काफिर जो कुरान करीम के मुकाबले में आएगा, इन 1000 आयतों में तदब्बुर,
गौर व फिक्र के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। और जवाब की अमली तस्वीर ये होगी कि हमारी औलाद के सीनों में कुरान करीम की हिफाजत की कसमें खानी पड़ेगी। यानी ये आहद करना पड़ेगा। एक दुश्मन ने हमें बरमौका मुतनब्बी किया है, लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह की किताब सुबह कयामत तक बाकी रहे, इसके लिए हम उसकी हिफाजत करेंगे। और सफरों में उसकी तिलावत, हजर में उसकी तिलावत, कुरान का हक ये है साल में 2 पूरे किए जाए। जो नाज़िला पड़ा हुआ है, अंदर देखकर अटक अटक कर भी पढ़ना जानता है, 2 मर्तबा पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से वन्नास तक खत्म करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो कुरान कयामत के दिन यूं काटला पकड़ेगा। या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कुरान खुद कहता है या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, हर हक वाले का हक दिलाना इंसान अपना फरीदा समझता है। मैं तेरी किताब हूं, मेरा हक मुझे दिला दे। तूने उसके सीने पर इसको महफूज किया था, उसकी जुबान पर तूने इसको आसान किया था, उसकी हिफाजत के लिए अंदर देख कर पढ़ने का जमाना मुहैया किया था, लेकिन उसकी तिलावत उसने न की। ये अपना हक मांगेगा। साल के 11 महीने में एक खत्म, और रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में एक खत्म। बहुत आसान है, इससे कम कोई चीज है ही नहीं, इससे कम कुछ नहीं। इससे ज्यादा जितना भी हो, रोजाना का एक कुरान, इस उम्मत के 4 उम्मती, इस नबी की उम्मत के 4 उम्मती ऐसे हुए हैं जो रोजाना एक रकात में पूरा कुरान खत्म करते थे। 2 सहाबा में से, 2 ताबईन में से पूरी रात में एक रकात में पूरा कुरान खत्म करते थे। कुरान जब तक दुनिया में कायम है, कुरान की तिलावत से क़ुलूब में नूरानियत पैदा होती है, दिमाग में तसल्ली पैदा होती है, रोजी में बरकत पैदा होती है, औलाद को इज्जत का बाइस होता है, फैमिली में सुकून का नतीजा होता है। लिहाजा कुरान करीम की तिलावत तरतीब बनानी है। खाली 5 फर्ज नमाजें हैं, किसी एक या 2 नमाज के बाद पाव पारा हो तो भी दिन में 1 पारा हो सकता है। 30 दिन में 1 कुरान हो जाएगा, यानी महीने में 1, रमजान समेत 12 कुरान हो जाएंगे। बहुत आसान। इससे ज्यादा रोजाना के 3 पारे, महीने में 3 हो जाएंगे, सालाना 12 या 36 हो जाएंगे। उम्मत का 1/3 तबका ऐसा है जो तकरीबन 36 कुरानों पर अमल पैरा है, यानी रोजाना के 3 पारे। और रोजाना के 3 पारे में 1.25 घंटा लगता है, और 1.25 घंटा अल्लाह की किताब अजीज की हिफाजत के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं, बल्कि 40 मिनट 35 मिनट के अंदर ये 3 पारे की तरतीब हो जाती है। कुरान करीम हदस अकबर से पाकी के साथ जुबानी पढ़ सकते हैं, कुरान करीम हदस असगर से पाकी के साथ हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं। 2 मसले हैं। जुनूबी हैज वाली औरत, नफास वाली औरत बगैर गुस्ल के कुरान नहीं पढ़ सकते। हरफन तालीम की गर्ज से पढ़ाने वाली मुअल्लिमा पढ़ा सकती है, जिक्र के दौर पर पढ़ सकते हैं। जैसे कुरान में आयत है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आयत कुरानी है। सफर में सवार हुए, आदमी जुनूबी है, औरत हेज वाली है, औरत निफास वाली है, ये जिक्र के तौर पर पढ़ती है, तिलावत के तौर पर नहीं। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदमी बड़ी नापाकी में नापाक है, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाता है, ये जिक्र है, ये तिलावत नहीं। अलबत्ता तिलावत के अंदाज में जुनूबी हदस अकबर में हैज निफास वाली औरत हदस अकबर में ये कुरान पढ़ नहीं सकते, और छोटी जो है नापाकी में बेवुजू होने की हालत में अल्लाह का कलाम हाथ में नहीं ले सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून,
पाक लोग ही कुरान को हाथ लगा सकते हैं। छोटी नापाकी में भी मुब्तला बेवुजू इंसान अल्लाह के कलाम को हाथ नहीं लगा सकता। तिलावत के आदाब, किबला रुख होकर के बैठे, वुजू कर ले, मिसवाक कर ले, खुशबू लगा ले, दो जानू होकर के बैठे, कुरान हाथ में ले, अंदर देख करके पढ़े। ये तरीका है। देखो, थोड़ी सी तिलावत पर बहुत बड़ा नफा नसीब होगा। अब आदमी मस्जिद में बैठा है, पैर लंबे कर दिए, दीवार से हैया अलल फलाह की तरफ देख करके टेक लगा दिया, हैया अलल फलाह की तरफ देख कर टेक लगा दिया और कुरान पढ़ रहा है। ये भी कुरान पढ़ने वाला है। याद रखो, जिसको अल्लाह से बातें करनी हो हदीस कुदसी में है वो कुरान पढ़े, और जिसको पैगंबर से बातें करनी हो हदीस में है कि वो हदीस से पढ़े। हकीकत में अल्लाह की तरफ से हर आयत पर जवाब मिलता है। इज़ा क़ाल अल-अब्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यक़ुलु रब्ब तबारक व तआला हमीदनी अब्दी व इज़ा क़ाल अल-अब्द अर्रहमानिर रहीम यक़ुलु रब्ब तबारक व तआला मदहनी अब्दी व इज़ा क़ाल अल-अब्द अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन यक़ूलु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मज्जदनी अब्दी व इज़ा क़ाल अल-अब्द इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यक़ूलु रब्ब तबारक व तआला हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लि अब्दी मा सअल। यहां तक कि जब वलद्दालीन पढ़ता है तो कहता है आमीन, और मनवा फकत तामीनुहु तामीन अल मलाइका गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सोचो, इबरत का मकाम है जब बंदा वलद्दालीन पढ़कर आमीन कहता है, फरिश्ते भी तिलावत को सुनते हैं और पढ़ने वाले के जवाब में वो भी आमीन कहते हैं, और पढ़ने वाले का आमीन और फरिश्ते का आमीन मिल गया, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, पिछली जिंदगी के तमाम सगीरा गुनाह माफ हो गए। इसका नाम अल्लाह की किताब है। इसकी हर हर सूरत के बेशुमार फवाइद है। लिहाजा एक कुरान करीम का नुस्खा जलाकर हम मुसलमानों के दिमाग में एक तशवीश और उलझन पैदा करके हमें मुतवज्जे किया है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अल्लाह की जमीन पर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, उसकी किताब अजीज की हिफाजत नहीं करते। और हिफाजत कैसे होगी? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन। हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत करके रहेंगे। अल्फाज हुफ़ाज़ कुरान महफूज करते हैं, लबोलेजा कारी महफूज करते हैं, तर्जमा से कुरान करीम की आयात को जानने का काम उलमा करते हैं, इत्तिहाद और इस्तिंबात मसाइल का काम फुक़हा करते हैं और अइम्मा मुज्तहिदीन करते हैं। और क़यामत तक 540 आयतों के जरिए से जमाने की हर रोशन, हर ताबनाक और हर चैलेंज और हर उम्मीद का जवाब कुरान में है। किसी भी सूरत में हो, पहले रेडियो था, उसका इस्तेमाल भी कुरान से, मोबाइल आया, उसका इस्तेमाल भी कुरान से, व्हाट्सएप आया, इसका इस्तेमाल भी कुरान से, इंस्टाग्राम आया, इसका इस्तेमाल भी कुरान से। बल्कि कुरान करीम किताब हिदायत, अल्लाह की जबरदस्त किताब, महकम और मुस्बत, जिसके जरिए से हकाम का इस्बात होता है। 6665 आयतों में से 1000 आयतों में चैलेंज के जवाब थे। बात का खुलासा सिर्फ इतना है, 1457 साल तक कुरान चैलेंज होते रहे, चैलेंज के जवाबात दिए जाते रहे। हालात तो नागुज़ीर चीज है, आते जाते रहेंगे। भाई, रोटी को इंसान के मुंह में आने से पहले आटे को चक्की में पिसाया जाता है, गेहूं के कीमती दाने, और उसको चक्की की प्लेटों के अंदर पीसना पड़ता है, उसकी सूरत बदल करके रख देता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो गुंदुबी कलर सफेद कलर में तब्दील हो जाता है। अगर गेहूं का दाना इब्तिदाई मरहले की ये तकलीफ बर्दाश्त न करे तो कसम खुदा ताला की कभी रोटी इंसान के मुंह में नहीं आ सकती। फिर इंसान के हाथ में उसको मला जाता है, गोंदा जाता है, घोसा जाता है, उसको छलनी से उसको छाला जाता है, फिर गोंदा जाता है,
اور کلکتی تپتی ہوئی اس پلیٹ کے اندر، اس توی کے اندر، اس تاوڑی میں اس کو بنایا جاتا ہے جس میں اس کا ہاتھ کا پنجہ رکھنے کی کسی انسان کو طاقت نہیں، جس میں اس کی روٹی تاوڑی میں بنتی. اگر روٹی کی جگہ ہاتھ پھینک لے تو اس کی طاقت کے باہر کی چیز. اور انسان اپنی طبیعت کا کچی پکی کڑک جیسی چاہتا ہے بنا کر کے پیش کرتا ہے. اگر گندم کا دانہ ان حالات کو برداشت نہ کرتا تو کسی انسان کے پیٹ کا لقمہ بن کر اس کے جگر کی اور اس کے کوٹھے کی بھوک کو یہ ختم نہ کر سکتا. ٹھیک اسی طرح اللہ کی کتاب پر 1457 سال سے حالات آتے جاتے رہے. چیلنج آقا موجود تھے، قرآن اتر رہا تھا، 23 سال تک تو وہ چیلنج ہوتے رہے، جواب آتے رہے. ابو بکر کی 2.5 سال خلافت کے زمانے میں قرآن کے ساتھ چیلنج آیا، فوراً کہہ دیا کہ اب نبی نہیں رہا تو یہ دین ختم ہو گیا، مرتد ہو رہے لوگ، قرآن کوئی چیز نہیں رہی. ابھی تو نبی دنیا سے رخصت ہوئے. یہ قرآن کے ساتھ ابو بکر کے زمانے میں چیلنج، عمر کے زمانے میں چیلنج، عثمان کے زمانے میں چیلنج، علی ابن ابی طالب کے زمانے میں چیلنج، حسن کے 6 مہینے دور حکومت میں چیلنج، اور آج تک قرآن کی بے حرمتی، قرآن کریم کے ساتھ بدسلوکی، قرآن کے حقوق کی عدم حفاظت، ان تمام مسائل میں مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ایک تاریخ ہماری بتاتی ہے جو قیمتی ہیرا ہوتا ہے اور جو چیز خزانے میں جتنی مہنگی ہوتی ہے اس کی حفاظتی تدابیر بھی اس بلیغ انداز میں کی جاتی ہے. اللہ ہے وہ اپنی کتاب عزیز کی حفاظت جس کے سینے کو اللہ پسند کرتے ہیں اس میں کراتے ہیں. ہر کس و ناقص کے سینے کی یہ بات نہیں. لہذا بہت بڑی، بہت خطرناک گھناؤنی حرکت اللہ کی کتاب کے ساتھ کی ہے جس نے مسلمانوں کے قلوب کو بہت ہی زیادہ رنجیدہ کیا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہر زمانے میں لوگ آقا کے زمانے سے لے کر آج تک کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا دین غالب آ کر کے رہتا ہے. ہمیں یہ سبق ہے آج کی مجلس میں کہ ہم تلاوت کا اہتمام کریں، گھروں میں، مستورات میں، بچوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام. کم از کم 1 پارہ روزانہ، یا فجر کے بعد یاسین، مغرب کے بعد سورہ سجدہ، سورہ واقعہ اور سورہ ملک. 7 رکوع ہے، 3 ملا کر 7 رکوع. ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ کہف، ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ کہف. روزانہ یاسین، قرآن کا دن بھر کے سارے کام اس کی برکت سے پورے. گھروں میں روزیوں کی برکت، اولاد کو عزت، کھیتیوں میں برکت، یہ سب کچھ یاسین کی برکت سے ہے. ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ کے نبی سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، پڑھے مغرب کے بعد. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ، فقر و فاقہ سے حفاظت کے لیے، عذاب قبر سے حفاظت کے لیے سورہ ملک. روزانہ کی 4 سورتیں، ہفتے کا 1 کام، یہ قرآن کریم. اور جتنا جس کو لگاؤ اتنی تلاوت کا اہتمام. دینی مدرسوں میں ایسے طلبہ بھی پائے جاتے ہیں جو حافظ بننے کے بعد یہ تہیہ کرتے ہیں روزانہ 1 قرآن پڑھ لوں گا، پڑھ لیتے ہیں. کوئی تہیہ کرتا ہے روزانہ 15 پارے پڑھ لیتے ہیں. وہ بہت آسانی سے اپنا سبق سنا کر بھی 15 پارے ظاہر پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. لہذا کوشش کرے تلاوت کا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَا أَيُّهَا الْخُلَّانُ عَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. دوستو قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ فَيَا أَيُّهَا الْخُلَّانُ عَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. قرآن کی تلاوت کو اپنے ذمہ لازم کرو. قرآن کا سمجھنا، قرآن کا تلاوت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو خاص نعمت کے طور پر دیا گیا ہے. لہذا مدارس اسلامیہ عربیہ قرآن کریم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان حالات میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی 2 گنا ہو جاتی ہے. صرف مسجد تک خاص نہ کرے، نمازوں کے اوقات تک خاص نہ کرے. کئی ملکوں میں آپ نمازوں کے بعد دیکھیں گے، ہمارے ہندوستان میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے. عصر سے لے کر مغرب تک دنیا کے کئی ممالک میں بڑی عمر کے لوگ
जो जिम्मेदारियों से फारिग है वो मस्जिद में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मगरिब से इशा तक मगरिब में मस्जिद ही में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाजों से फरागत पर नमाजों से पहले भी 15-20 मिनट कुरान पढ़कर ही जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ रमजान में माहौल, बाकी रमजान के अलावा ये कुरान जुज़दानों में बांध कर रख दिया है। आइंदा रमजान शाबान की 15वीं तारीख से उसकी धूड़ हटाते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, ये बहुत बड़ी कोताही है, ये बहुत बड़ी खामी है। ये जो बेबरकतियां हो रही है, ये जो हालात की बौछार में हम फंसे हुए हैं, इसकी वाहिद वजह ये भी है फराइज में कोताही के साथ कुरान की तिलावत से हमने बिल्कुल बेतवज्जुही बरती। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी कोताही है। इसके इजाले की कोशिश करें और आज से ही घरों में, वाड़ियों में, हमारे मोहल्ले की मसाजिद में कोई तरतीब बना ले। 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी इस काम का आगाज कर दे। भाई इधर उधर बाकरे तोड़ना, इधर उधर बाजारों में वक्त पास करना, शैतान के हथकंडों की जगह में बैठना, शैतान के अंडे बच्चों की देने की जगह में बैठने के बजाय रहमान ताला के घर में बैठकर इसके तजल्ली और उसका कुर्ब और उसका नूर हासिल करके, ये वो अमल है कसम खुदा ताला की, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। बड़े अजाब से पहले खुदा ने छोटा अजाब चखाया, लेकिन अल्लाह के यहाँ हिकमत और मसलिहत है। 13 साल इंतजार रहा, हिजरत के बाद 2 साल इंतजार रहा, 15 साल के बाद वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। कुरान के मुकाबले में चैलेंज करने वालों को बदर की कलीब बदर में ले जाकर खुदा ने कुत्तों की मौत मरवाया। ये अल्लाह का निजाम है। ऐसी बुरी मौत मरवाया, ऐसी बुरी मौत 313 निहत्ते सहाबा के दरमियान 1300 की लश्कर जर्जार को खुदा ने भेड़ बकरियों की तरह जमा करके कलीब बदर के अंदर सबको ले जाकर के खत्म कर दिया। वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। जो बच गए उनके ईमान की फिक्र में ऐसा किया गया, शायद के ये लोग ईमान ले आए। अल्लाह ताला अपनी किताब अजीज की तिलावत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए और इसकी हिफाजत के असबाब के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान में इसके लिए अंग्रेज का दौर खत्म हुआ, लेकिन अंग्रेज अपना असर खत्म नहीं कर गए। इसलिए उन्होंने कहा इनके जिस्मों पर हमारी हुकूमत खत्म हुई, लेकिन इनके दिलों पर हमारी हुकूमत बाकी रहनी चाहिए। अंग्रेज जाहिरी हुकूमत इनकी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने, वो बड़ी चालाक कौम है, बहुत चालाक और अय्यार कौम, इन्होंने सोचा कि जिस्मों पर हुकूमत खत्म हो गई लेकिन दिलों पर हुकूमत बाकी रहनी चाहिए। इसलिए तालीम इंग्लिस्तानी कर दी और इंसानों के जिस्म अरबस्तानी रह गए। जिस्म अरबस्तानी दाढ़ी है, कुर्ता है, पेशानी पर सज्जा का निशान है, लेकिन तालीम इंग्लिस्तानी बाकी रह गई। कि हमारी तालीम बाकी रहनी चाहिए। रूह पर तो हमारा ही जम घटा हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु को, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही को, हजरत जो है अशरफ अली साहब थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, आज इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को, इन्होंने इसका भी जवाब देते हुए कि ये मुसलमानों के जहन भी अरबस्तानी, तालीम भी अरबस्तानी और जिस्मानी अरबस्तानी हो, इसके लिए इन्होंने मदरसे की बुनियाद डाली जिसका नाम कासिमुल उलूम है, यानी दारुल उलूम देवबंद। मदरसे का नाम कासिमुल उलूम है, दारुल उलूम देवबंद। तकरीबन 6000 तलबा पढ़ते हैं, 44 करोड़ का खर्चा है। खाली सुनकर के दिमाग की जो है रग ढीली पड़ जाए, और वो मुसलमानों के बाहमी ताउन से पूरा होता है। कुछ बेचारे अंग्रेज के जरखलीद ऐसे लुच्चे गुलाम हैं कि जिनको इन मदरसों की जो है तरक्की और इन मदरसों का फलना फूलना पसंद नहीं है, इसलिए वो अंग्रेज के गुलाम लुच्चे उसमें उंगलियां करते रहते हैं। लेकिन कसम खुदा ताला की, अंग्रेज जब नहीं नुकसान पहुंचा सके,
2 लाख मुसलमानों को शहीद करके लाखों कुरान के नुस्खे जलाकर इनको इस जमीन से खैरबाद कहना पड़ा, तो सुबह कयामत तक अल्लाह के कलाम में कोई हर्फ नहीं कर सकता। 44 करोड़ का खर्चा, हजारों की तादाद के अंदर फारिगीन पूरे वर्ल्ड में मक्का मुकर्रमा समेत कासमी उलमा मौजूद जो काम कर रहे हैं। एक जबरदस्त इदारा है जो पिछले चंद सालों से हालात है, इस वजह से नमाज से फरागत के बाद दारुल उलूम देवबंद के चंदे के लिए हजरत मौलाना तशरीफ लाए हैं। सारे साथियों से गुजारिश है, हर मर्तबा हम ऐलान करते हैं हर मदरसे के लिए इसके अखराजात बहुत, जिम्मेदारियां बहुत, आलमी सतह से खुसूसन आलम में, वर्ल्ड में, चाहे वो हरमैन का मसला हो, चाहे वो चीन का मसला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हालात हो, अगर बरवक्त किसी ने रहनुमाई की है तो दारुल उलूम देवबंद में इसका फैज़ पूरी दुनिया पर आम ताम रहे और हम सबक के दर्जे में इस्तेमाल हो जाए। अपनी ज़कात, लिल्लाह, सदका, खैरात के जरिए से नमाज से फरागत के बाद भरपूर ताआवुन फरमाते जाए, मदद करते जाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा ऐलान ये है, दारुल उलूम हसनिया में 30 जनवरी सोमवार के दिन 3 अहम प्रोग्राम है। एक मुसाबका है कुरान करीम का, एक तकमील सलाह का प्रोग्राम है, एक तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम का प्रोग्राम है। 30 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 8:30 बजे अकाबिर उलमा और कुर्राए किराम तशरीफ ला रहे हैं। तमाम साथियों से गुजारिश है, कुरान करीम की मौजिज़ाती असर से मुस्तफीद होने के लिए और हमारी इस दरसगाह मादरी इल्मी से मुस्तफीद होने के लिए अपना वक्त फारिग करके, ये सालाना जलसा नहीं है, सालाना जलसे से पहले के ये प्रोग्राम है, इसमें तमाम हजरात शिरकत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।